اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ برکت پائیں گے اور آپ جان پائیں گے کہ بپتسمہ مسیحی جو علم الہی ہے اس کی کیا اہمیت رکھتا ہے، یا کرسچن پراسپیکٹ میں بپتسمہ کی کیا اہمیت ہے۔ بپتسمہ کا سادہ مطلب جو ہے وہ ڈبونا ہے، وہ پانی کے اندر ڈبونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا، مکمل طور سے کسی چیز کو ڈبو دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بپتسمہ کہتے ہیں۔ اور جو ہماری لائف کے لیے، کرسچن لائف کے لیے بپتسمہ کا جو مطلب ہے وہ مسیح میں ڈوب جانا، مسیح میں کیا کرنا ہے؟ ڈوب جانا ہے۔ مسیح کا رنگ، مسیح کا کردار، مسیح کا رویہ، مسیح کا کلام، مسیح کی قدرت ہم پر چھائی رہے، اس کا مطلب ہے مسیح میں ڈوب جانا۔ پانی میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، پھر باہر نہیں آتے، مر جاتے ہیں، لیکن جو اس پانی میں مرنے کے لیے اترتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو بپتسمہ کا مطلب پانی میں ڈبونا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بات حکماً کہی۔ کیا کہا ہے اس نے؟ حکماً یہ بات کہی ہے۔ جب پچھلا میسج ہم انجیل کی منادی کو سن رہے تھے تو اس نے کہا جاؤ سب قوموں کو، اور جو ایمان لائے وہ ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کہیے جو ایمان لائے، زور سے کہیے جو ایمان لائے، ضروری ہے وہ بپتسمہ ہے۔ جتنے لوگ آج بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، کیا وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی زندگی کا مالک اور نجات دہندہ اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لہو کے وسیلہ سے میرے ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ دھلا، میں پاک کیا گیا ہوں، صاف کیا گیا ہوں۔ اب میں اس کو فالو کرنے کے لیے مکمل طور سے اپنی زندگی مسیح کو دیتا ہوں۔ شاگرد بناؤ اور جو ایمان لائے، اس کا مطلب ہے سارے شاگرد ایمان بھی نہیں لاتے، شاگرد تو ہوتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے موقع کے ساتھ سم ٹائم شاگرد ہوتے ہیں۔ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو کرسمس آتے ہیں خدا ان کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن جو شاگرد اور ایمان لائے وہ کیا لے؟ بپتسمہ۔ اور ایمان کی کتاب میں جب پہلا واز عید پینتیکوست کے دن مقدس پطرس نے کیا تو لوگوں کے دل پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا صاحبو ہم کیا کریں؟ تو پطرس رسول نے کہا جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اور کیا لے؟ بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور لکھا ہے اسی دن کتنے لوگ؟ کتنے لوگ؟ 3000 لوگ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہوں گے۔ وہ یسوع مسیح پر، اس کے کفارے پر ایمان لائے کہ وہی خدا کا ٹھہرایا ہوا وسیلہ ہے نجات کے لیے، وہ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے بپتسمہ لیا اور وہ کلیسیا بن گئے، خدا کی چنے ہوئے لوگ بن گئے۔ بپتسمہ فتح مند اور آزاد زندگی کی بنیاد ہے، اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، پانی میں اترتے ہیں، اور جب ہم بپتسمہ لینے کے لیے پانی کے نیچے جاتے ہیں تو گویا ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں، اور جب پانی سے باہر آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ گویا پانی کا بپتسمہ
مسیح میں دفن ہونے اور مسیح میں جی اٹھنا ہے. اور اس کا خوبصورت جو حوالہ یا تعلیمی بات مقدس پالوس رسول نے رومیو 6 باب کے اندر کی ہے. اور آج تھوڑی دیر ہم چند حوالے رومیو 6 باب میں سے دیکھیں گے. اور بپتسمہ کے مسیح یسوع کے کاموں کے ساتھ 4 نقوش یا 4 امپریشنز جو ہے وہ ہوتے ہیں جب ہم ہاؤس میں یا کہیں پر بھی پانی میں بپتسمہ لینے کے لیے اترتے ہیں یا جاتے ہیں. پہلا نقوش یا پہلا امپریشن یہ ہے کہ وہ موا، میں بھی اس میں مر گیا. کہیے ہاللیلویہ. مسیح میرے لیے موا. کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں مسیح میرے لیے موا؟ جب آپ ہاؤس میں اترتے ہیں، جب آپ ایمان رکھتے ہوئے پانی میں اترتے ہیں، تو آپ بھی یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اس میں مر گئے ہیں. حوالہ دیکھیں گے رومیو 6 باب اس کی 6 اور 7 آیت کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا. آمین. آمین. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب کی گئی ہے کہ گناہ کا بدن بیکار. مصلوب ہونے کا مطلب کہ ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے. صلیب پر کیا ہوا؟ مسیح مصلوب ہوا اور صلیب پر اس نے کیا دی؟ اپنی جان دی. اور مقدس پالوس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری کون سی انسانیت؟ پرانی انسانیت. پرانی انسانیت کیا ہے؟ وہ انسانیت جو ہمیں فطرتی طور سے گناہ آلودہ انسانیت آدم سے ملی. وہ انسانیت جس کے اندر ہر طرح کا ظلم ہے، وہ انسانیت جس میں ہر طرح کا گناہ ہے، وہ انسانیت جس میں ہر طرح کی گراوٹ موجود ہے. وہ انسانیت صلیب پر مسیح کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ مصلوب ہوئی. وہ مر گیا، وہ موا، میں بھی اس کے ساتھ مر گیا. دوسرا امپریشن، وہ دفن ہوا، میں بھی اس کے ساتھ دفن ہوا. اس کی تیسری اور چوتھی آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، رومیو 6 کی تیسری اور چوتھی آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. آمین. 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 لکھا ہے بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ دفن. ہماری پرانی انسانیت دفن ہو گئی، ہماری گناہ آلودہ حالت دفن ہو گئی. ہم اس کے ساتھ دفن کیے گئے، اور جب اس کے ساتھ دفن کیے گئے ہیں تو یسوع مسیح کیا ہمیشہ کے لیے قبر میں رہے؟ ہاللیلویہ. وہ زندہ ہوئے. اگر وہ زندہ ہوئے ہیں تو آپ بھی زندہ ہوئے. ہاللیلویہ. اگر وہ زندہ ہوا ہے تو آپ بھی زندہ ہوئے. تیسرا امپریشن، وہ زندہ ہوا، میں بھی اس کے ساتھ زندہ ہوا ہوں تاکہ نئی زندگی حاصل کروں اور نئی زندگی میں چلوں. چوتھی آیت کے آخر میں یہ بات لکھی ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، ہم بھی
नई जिंदगी में चले। कौन सी जिंदगी में चले? भाइयों, कौन सी जिंदगी में चले? बहनों, कौन सी जिंदगी में चले? अब ये नई जिंदगी कौन सी मुसीबत है? हम तो अच्छा भला जी रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम तो रोज स्कूल भी जा रहे हैं, हम तो पढ़ भी रहे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, हम तो मूवीज भी देख रहे हैं, हम तो हैंग आउट के लिए भी जा रहे हैं, हम तो चिल जुल करने के लिए भी जा रहे हैं, हम तो पार्टीज में भी जा रहे हैं। अब ये नई जिंदगी कौन सी मुसीबत आखिरी हुई है? नई जिंदगी जिसमें कुदरत है, जिसमें जलाल है, जिसमें हजूरी है, जिसमें खुदा की कुदरत हमारे साथ है। नई जिंदगी, यीशु मसीह के काम, यीशु मसीह का किरदार हमारी जिंदगियों के अंदर उतर आता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसमें उसने बात कही, शायद मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एक बात उसने कही, बड़ी जबरदस्त बात। मुझे उस मुफक्कर का या स्कॉलर का नाम भूल गया। उसने कहा, जब हम नई जिंदगी पाते हैं तो खुदा की अल्लाह की जिंदगी के इंप्रेशंस हमारी जिंदगी के अंदर आ जाते हैं। आपके लिए जो करना मुश्किल होता है वो आप आसानी से करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि खुदा की जिंदगी आपके अंदर आती है। खुदा की जिंदगी आपके अंदर उतर आती है। जो आप पहले नहीं कर पाते वो आप आसानी से कर पाते हैं। जलाल आपके साथ होता है, हजूरी आपके साथ होती है, इख्तियार आपके साथ होता है, कुदरत आपके साथ होती है, मसीह का इख्तियार आपके साथ होता है। नई जिंदगी, क्या आप इस नई जिंदगी को लेने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? कितने लोग आज रेडी हैं इस नई जिंदगी को लेने के लिए? हाथ आ रहे हैं ऊपर, हाथ आ रहे हैं ऊपर। जो आज बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो कितने हाथ हैं? वो जरा आए, हाथ ऊपर आए, जरा हाथ ऊपर आए, थोड़े हैं इधर, हाथ ऊपर आए। हाँ, कुछ है, जरा ऊपर कर ले, थोड़ा सा नजर नहीं आता, सूट रंग बिरंगे हैं, पता नहीं चलता। इधर से भी खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की तारीफ हो। आप मसीह में जिंदा किए जा रहे हैं। आज पुरानी इंसानियत दफन हो रही है, नई इंसानियत आपके अंदर जन्म ले रही है। पुराना आदमी गुनाह लेकर आया और नया आदमी आदमे सानी जिंदगी लेकर आया और जिंदा नफ्स बना, और वो आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। हालेलुया। और चौथा इंप्रेशन या चौथा नक्श या नकूश, वो आसमान पर चढ़ गया, मैं भी उसके साथ उठाया गया। कहिए हालेलुया। आप ईमान रखते हैं आप उसके साथ उठाए गए? आप आसमानी मुकामों पर बैठाए गए, आप यहां पर भी मौजूद हैं और आप बाप के हुजूर भी मौजूद हैं। उसने हमें नजात ही नहीं दी, उसने हमें हिस्सेदार भी बनाया है और उसने हमें आसमानी मकामों पर भी बैठाया है। एक हवाला हम पढ़ते हैं, कुलसियों 3 बाब उसकी पहली आयत, Colossians chapter 3 verse 1। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आमीन। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो, दुनिया की तलाश में नहीं, दुनिया की चीजों की तलाश में नहीं। मसीह जलाया गया है, मसीह जिंदा है, वो हमेशा के लिए जिंदा है, और आलम बाला की चीजों की तलाश में रहे जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ, और वो आपको भी लेने के लिए जल्द आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं वो हमें लेने के लिए आने वाला? यूहन्ना पहला यूहन्ना
3 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, जो ईमान रखते हैं वो उसी तरह अपने आप को पाक रखे जैसा वो पाक है। वो अपने आप को वैसा ही क्या रखे? पाक रखे जैसा वो। कौन वो? जैसा वो अपने आप को पाक रखे, दुनिया के कामों में न उलझे रखे, अपने आप को पाक रखे। रस्म दफन, दफनाए जाने का फरीजा किसी शख्स को मार डालने के लिए नहीं, बल्कि ये फरीजा उस वक्त अदा किया जाता है जब इंसान मर जाता है। दफनाया कब जाता है? जब कोई मर जाता है। और बपतिस्मा का मतलब पुरानी जिंदगी मसीह के साथ पानी में दफन करना और नई जिंदगी में दाखिल होना। पुरानी जिंदगी, पुराने का गुनाह आलूदा फितरत, गुनाह जो हमें उलझाए रखता, बार बार उसका शिकार हो जाते हैं। आज उस इंसानियत को इस हाउस के अंदर हमने मसीह के साथ क्या कर देना है? दफन कर देना है। और मसीह की जिंदगी लेकर हमने क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत, जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। जो कोई, मेरे साथ बोले, जो कोई मसीह यीशु में है, जो कोई मसीह यीशु में है, एक दूसरे से कहिए, जो कोई मसीह यीशु में है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। नया मखलूक जो खुदा के मुताबिक है, जिसको दो दिया गया है, जिसका प्राइस पे कर दिया गया है, जिसका रैंसम दे दिया गया है, जिसका तवान अदा कर दिया गया है। नया मखलूक जिसकी कीमत यीशु मसीह ने अपने लहू से दे दी। Tetelestai, all finished, तमाम हुआ, पुराना काम तमाम हुआ, नजात का काम तमाम हुआ, शरीयत के मुताबिक गुनाहों को परफेक्शन के साथ धोना तमाम हुआ। ऑल प्राइस आर पेड, सब कुछ अदा कर दिया गया है। अब एक नई जिंदगी है, वो जिंदगी जो खुदा के मुताबिक और कलाम के मुताबिक बनती है। बपतिस्मा का मतलब गुनाह के बदन को बेकार कर दे। अब मसीह के लिए जिए, अब उसकी मर्जी से जिए। अब हम अपनी मर्जी से नहीं, जो वो कहता है वो करें, जो उसका कलाम हमें करने के लिए कहता है वो करें। दुनिया का तरीकेकार नहीं। दुनिया का तरीका ये है कि इधर मारा तो आगे से मारा, ईंट के बदले पत्थर, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जान के बदले जान। और नई जिंदगी का मतलब अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये मसीह की जिंदगी है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। पुरानी चीजें क्या थी? बुरी थी। मैं बदला लेने वाला था, मैं झगड़ालू था, मैं नफरत करने वाला था, मैं मार देने वाला था, मैं शहवत के हाथों बिका हुआ था। लेकिन नई जिंदगी, मेरी जिंदगी मसीह के मुताबिक।
मसीह के काम के मुताबिक और मसीह के कलाम के मुताबिक बनती चली जाए। बपतिस्मे का मतलब, और मुझे सबसे इंस्पायरिंग टेक्स्ट लगता है वो मुकद्दस पत्रस रसूल का खत है और उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत है। अगर हम इसको एक दो आयत पीछे से पढ़ सकें। पहला पत्रस आयत से पढ़ें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक़्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी, जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और इसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से, कहिए हालेलुया। बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमें क्या करता है? बचाता है। और आगे बढ़िए, खूबसूरत बात, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। आमीन। हाउस में जाना सिर्फ जिस्म की नजासत दूर करना नहीं, बल्कि खालिस नहीं। तो बोलिए खालिस नहीं है। जोर से जरा बोलिए खालिस नहीं है। जोर से बोलिए खालिस नहीं है। खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना। तालिब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है जी? तालिब का क्या मतलब होता है? तालिब इल्म, हाँ जी। खालिस नीयत से खुदा के क्या होना है? तालिब होना। अब तालिब का अपना अपना मतलब जो आपका ले लीजिए। मेरे मुताबिक कि अपनी होल लाइफ खुदा के हुजूर सरेंडर कर देना, उसको चाहना है, उसके तालिब रहना, उसकी ख्वाहिश करनी, उससे मुलाकात के मुतमन्नी रहना। ख्वाहिश ये रहे कि हमें मसीह की ज़रूरत है। खालिस नीयत से, खालिस नीयत से, जिन्हें खालिस दो दे उस तरह पाकिस्तान से खालिस का मतलब खास मुझे तो पता चल रहा है। तो खालिस से के न खालिस खालिस दो दर्द खालिस नीयत ना कि होना खुदा दे तालब होना। खालिस नीयत से खुदा के तालब हो जाना, खुदा की हजूरी के तालब हो जाना, खुदा के मुश्ताक हो जाना, खुदा के कलाम के तालिब हो जाना, खुदा से अपनी जिंदगी के लिए सीखना, अपनी जिंदगी उसके कदमों में ढाल देना और उसे कहना कि खुदावन मैं तेरे मुताबिक जैसे तू चाहता है वैसे ही मैं जीना चाहता हूं। कहिए हालेलुया। अब वैसे जीना चाहते हैं जैसे खुदा कहता है। क्या हम इस बात के तालिब हैं? क्या हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि हम खुदा के तालिब हों, हम वैसे जिए जैसे खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में रहें? बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ कीजिए इस दुनिया में, लेकिन इतना बहुत कुछ मत कीजिए कि आपके लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा बंद। वही कीजिए जो आपको आसमान पर लेकर जाए, जो आपको हमेशा की जिंदगी में। वही कीजिए जो खुदा चाहता है। बपतिस्मा अपनी जिंदगी खुदा के हुजूर दे देना, उसके फॉलोअर हो जाना, उसके पीछे चलना। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ात ये वाली खुद ही उसके ताबे। खुदावन
तू जो फरमाए तेरा बंदा सुनेगा और वही कहेगा। खुदावन तू मुझे जहाँ ले जाए मैं वहाँ जाऊँगा। खुदावन मैं तेरे हुक्म में रहूँगा, मैं तेरी बात सुनूँगा और मैं तेरे पीछे चलता रहूँगा। फॉलोअर्स होने के लिए, मसीह के फॉलोअर्स होने के लिए, फॉलोअर्स क्या होते हैं? पैरोकार, उसके पीछे पीछे चलने वाले। पैरोकार, पैरोकार का मतलब है जैसे वो चल रहे उसके पांव पर पांव रखने वाले, उसके कदमों के निशान पर अपने कदम रखने वाले। पैरोकार उसके कदमों के निशान पे चलते जाए, उसके पीछे चलते जाए और वो आपको, उसके कदम आपको आसमान पर ले जाए। उसके कदम आपको कहां पर ले जाएंगे? उसके कदमों को फॉलो करते रहे, उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करते रहे, वो आपको कहां पर ले जाएंगे? आसमान पर ले जाएंगे। कहिए हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो और आपकी मदद करे और आपको उठाए और आपको संभाले और रहम करे और आप हमेशा खुदा से तारीफ करें। और उन जिंदगियों की बहुत बहुत मुबारक जो आज अपनी जिंदगी खुदा के हुजूर दे रहे हैं। कोई मंजर